for all. I request you all, please subscribe and like and share this channel, because the main aim and intention of this channel is to create awareness among general mass about that living God, which we call as a living Parmeshwar God in common terms. We will meditate on that God. If there is a creation, then there must be some creator, and it is evident that that creator exists, and he exists in our midst, and we we all are exposed to that permission, but that God, but that living God, but we are entangled in this society, in this living world, so much that even if that God is in front of us, we are not able to distinguish or acknowledge that Parmeshwar, that God. See, whoever is God, that God must be loving, that God must be eternal, that God must be loving to humanity, and that God must be approachable by all humanity, all people of humanity, whether a daughter or the man or a woman. He has no partiality. He has no partiality among rich, poor, or whether he is a beggar or a highly qualified man. Whoever with true seeking heart calls on that Parmeshwar, that God with true seeking heart, that Parmeshwar will visit him, and that God loves all humanity. You see, the God, he must be caring, he must be sin forgiving, and whatever sin we did, because we all from our mother womb entangled in this world events, and we all have fallen sin. But when we know that living God, when we come to God with true living, true feeling that God, I am your child, please forgive me, forgive my sins, I will never repeat in my coming life, with sincere heart, not with making full intention that once my sin is covered, then I will do sin other. Actually, that intention of people who come to God with this intention, that once my sins are forgiven, I will do another, and I will continue to live in sin. That intention of people bring curse of God on them, and their present condition become worse than that was existing earlier. So please, I request you, all of you who are watching this channel, Bible Knowledge for All, if you have started to continue watch this channel, then there is great calling in your life from that living God, that in this life please come to know about that living God. God is not confined to any religion, any sect or a special class of people. It is false myth. God is God of eternity. God is God of humanity. He loves each and every human, whether he is poor, whether he is rich, whether he is
crippled, whether he is healthy, whether he is a low post according to world, or whether he is a high income earning man. God is accessible. God must be accessible to all. Uh, I understand you might be understanding the feeling. See, brothers and sisters, that God is calling to you, oh my child, oh my daughter, please come to me, give your burdens to me. I will give you peace, mental peace. See, what true God, true Parmeshwar requires from man is the true seeking heart, living life with purity, and not lying to others or giving false witness to others. Only He wants your heart. He doesn't want this worldly affair like money or anything else. Only He needs your true seeking heart. Please, I implore to you all, please know that true living God, um, uh, as the time remains, because when the time will be gone, then no one will be able to come to that true God. It means after death there will be no one can come to God through paying or anything. It is false myth. When we have life, we have option that this is permission, that is or anything. But you understand, there is one creator of this universe who created all universe and who is master of all universe. And when we will die, anyone, any from Nigeria, any, when a person die, that soul goes to the creator. And if that soul has identified that true God in the earthly body, then he will come to that God, and that God will do justice with his soul. But the person who is entangled in this world and denies God, then when he will die, then his soul will be in great trouble, because after death there is no forgiveness of sins. I implore to you all that in this body come to true God, true Parmeshwar. Parmeshwar, that God is not entangled in worldly affairs, religion, sect, a special class of people or anything. It is false myth. Through this channel, our main aim, intention is to create awareness about true God in general mass. I will be providing you all written evidences to know the true God. Only you have patience, and whatever is being told to you in this channel, you meditate on it, you think, and anyone can call that God with true seeking heart. Oh God, please come in my heart. Please reveal yourself to me. I give my life to you. Only these things Lord wants. That true God doesn't need any money. He needs true heart. And the rest we will be talking in depth in this channel. Please like this channel, subscribe and share, as this truth is being revealed to you. Please share to others that this truth may be revealed to them in true spirit, and we all may be blessed.
because Lord God calling is for all humanity. Please understand that, and the life motive will be accomplished in a successful manner if one knows true God. In this life we have option that whatever we do, it is our accountability, but after life there is one more life, that is eternal life. If one will die and he recognizes that God in this life, then after death that God will make justice to his soul. But after death, if a person dies without knowing God, then that sin only will not let true living God to make justice with his soul, and his soul will be in justice and go to eternal hell. It is just our choice. Please, I implore to you all, please make a right choice in this life. Please like and share, subscribe our channel, and in this channel we will be talking in depth. Please remain on this channel and enjoy true living God, because the true living God has great calling in your life if you are watching this channel. Thank you. Hello viewers, good morning all of you, and welcome to my YouTube channel Bible Gyan for Bible Knowledge for All. जो लोग इस चैनल को देखना शुरू कर चुके हैं उनको उस जीवित परमेश्वर के नाम से प्यार भरा नमस्कार और प्यारा अभिवादन। प्रिय भाई बहनों, हमारे इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम जीवित परमेश्वर के बारे में जानें, और जब यह सृष्टि है तो एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर भी है। हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानें। इस चैनल का उद्देश्य है कि आम जनमानस में, लोगों के बीच में उस जीवित और सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। ठीक है, ये चैनल किसी भी जाति, धर्म या फिर व्यक्ति विशेष या संप्रदाय विशेष पर बात नहीं करेंगे। हम लोग एक जीवित परमेश्वर जो इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो भी आप लोगों से बात करूं उसका आप लोगों को हम रिटन लिखित फॉर्म में आप लोगों को नीचे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। आप उस लिंक पर जाकर के उस लिखित को पढ़ सके। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सुनिए भाई बहनों, मेरी बातों को आप ध्यान से और पूरे ध्यान पूर्वक सुने और समझे। अभी दिमाग में किसी प्रकार का कुछ को भावना को दूर करे और मेरी बातों को स्पष्टता से और ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, हम जो भी परमेश्वर है, ठीक है, वो परमेश्वर में कुछ गुण होने चाहिए, कुछ खासियत होने चाहिए, और वो ऐसा परमेश्वर हो जिसको कि हम जान सके। और देखिए, अब हम लोग परमेश्वर पर आते हैं। जो भी परमेश्वर है वो इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर होना चाहिए, बात एक। दूसरा होना चाहिए कि वो इस सृष्टि से प्रेम करने वाला परमेश्वर होना।
चाहिए, सारे मानव जाति का परमेश्वर होना चाहिए। वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय ये सब में बंधा हुआ परमेश्वर नहीं होना चाहिए। और ये गलत धारणा है लोगों के बीच में कि परमेश्वर जाति या किसी भी विशेष में बंधा हुआ है। वो परमेश्वर पूरी सृष्टि का परमेश्वर, हर मानव जाति, चाहे भारत के लोग हो, अफगानिस्तान के लोग हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के लोग हो, या फिर नाइजीरिया के निवासी हो, वो परमेश्वर सृष्टिकर्ता होना चाहिए, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर होना चाहिए, मानव जाति से प्रेम करने वाला परमेश्वर होना चाहिए। और उसके जो भी बेटे बेटियां इस दुनिया में हैं, अगर वो सच्चे दिल से उस परमेश्वर को अपने दिल से पुकारे तो वो परमेश्वर उस बेटा या बेटी के पास जा करके उसको सांत्वना दे और वो उसके समस्या को निराकरण करे। देखिए, परमेश्वर शब्द ना आज के समय में बहुत उलझा हुआ शब्द है। ठीक है, पहले हम लोग समझे परमेश्वर का शाब्दिक अर्थ। परमेश्वर का मतलब है परम ईश्वर, जो ईश्वरों का ईश्वर, जो कि जिसको जीवन मृत्यु पर अधिकार है, और जीवन मृत्यु पर अधिकार है, जो कि हर प्राकृतिक घटनाओं पर उसके अधिकार है। जैसे हमारे लिए प्राकृतिक घटनाएं अटल हैं, लेकिन परमेश्वर जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकृति को बनाया, उन्होंने इस हवा पानी आकाश पृथ्वी को बनाया, और हवा पानी आकाश पृथ्वी ही प्रकृति के अंदर आते हैं। जिस गुरु ने, जिस सच्चा परमेश्वर ने इन सब को बनाया, वो ये सब उसी परमेश्वर के अधीन है। ठीक है, और वो जो है सर्वज्ञ होना चाहिए, यानी कि वो परमेश्वर एक कुल या भाषा में या जो इस दुनिया का है उसमें ने ये पूरे सृष्टि का परमेश्वर होना चाहिए। हर एक बेटा बेटी मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है वो परमेश्वर का बेटा या बेटी है। हमको ये बात समझना चाहिए कि वो परमेश्वर, अगर कोई भी बेटा बेटी सच्चे दिल से उस परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो परमेश्वर बिना किसी जाति धर्म का भेद किए हुए, बिना किसी पक्षपात किए हुए उस व्यक्ति पर आएंगे। देखिए, परमेश्वर में सबसे बड़ा बात है कि वो पवित्र परमेश्वर होना चाहिए। वो ऐसा परमेश्वर होना चाहिए जो कि हमको, वो स्वयं पवित्रता का मानक हो और वो हमको एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए प्रेरित करे, वो हमसे प्रेम करे। वो परमेश्वर हमारे जो पाप हमने किए हैं जाने अनजाने में, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पाप कौन क्षमा करेगा। पाप क्षमा करने का अधिकार उसी को है। देखिए, एक उदाहरण हम देंगे। जैसे मैं, हमारा बेटा या बेटी है, ठीक है, बेटा बेटी कुछ गलती करता है तो वो मेरे सामने गलती किया तो हम उस गलती को सुधार करके अपना बेटा बेटी को माफ कर सकते। ये हुआ एक क्षमा। लेकिन वो तो मेरा एक बेटा या बेटी है, लेकिन ये सृष्टि पूरा मानव जाति जो पाप कर रहे हैं और जो पाप में गिरे हुए हैं, अगर वे पाप करते हैं, वो तो सब कोई करते हैं, हम भी हैं, हम भी अछूते नहीं हैं। और लेकिन अगर हम सच्चे दिल से उस पाप का पश्चाताप करें तो वो परमेश्वर पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर होना चाहिए।
यहाँ पर बात आती है कि वो पाप को कैसे क्षमा कर सकते हैं। ये बात बहुत गौर करने वाली बात है कि पाप को क्षमा वही करेंगे जो कि पाप को क्षमा करने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, जैसे ये पूरे मानव जाति पाप करने थे, पाप का न मृत्यु न, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा वो जीवित परमेश्वर जब ये सृष्टि, जब हम पाप में मर चुके थे और नरक की ओर, मृत्यु की ओर जा रहे थे, मृत्यु का मतलब है कि अनंत काल का आग, नरक, तो वो परमेश्वर हमारे लिए, हमारे पाप के लिए बलिदान हुए। ठीक है, और वो परमेश्वर हमारे पाप के लिए बलिदान हुए और तीसरे दिन जी उठे। देखिए यहाँ पर मैं आपको, कुछ लोगों को अटपटा लगता होगा कि ये बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि ये, लेकिन देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सच्चा परमेश्वर किसी जाति, धर्म या किसी संप्रदाय में उलझा हुआ नहीं है। ये एक गलत नैरेटिव है या फिर एक गलत दुनिया में कथन है जो कि पूरी मानव जाति इसमें भरमाई हुई है। मैं आपको सब कुछ लिखित में, और आप इस पर गहराई से मनन करें। अगर आज आप ये YouTube चैनल देख रहे हैं तो परमेश्वर का आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बुलाहटा है कि आप उस सच्चे परमेश्वर को जानें। इस YouTube के दौर में बहुत सारे चैनल्स जो होड़ लगी है YouTube चैनल्स की, लेकिन हमारा ये YouTube चैनल एकमात्र सिर्फ और सिर्फ ऐसा चैनल होगा जो कि उस सच्चे जीवित परमेश्वर के बारे में हम लोग मनन करेंगे और हम लोग उस पर गहराई से चर्चा करेंगे। अगर आपको या किसी को भी कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। कोशिश हो कि आप अपना जीमेल आईडी दें, मैं आपके जीमेल आईडी पर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, क्योंकि आज के समय में एक जीवित परमेश्वर के नाम से मैं देखता हूं कि एक बहुत बड़ा बैंकरप्सी, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत बड़ा खालीपन आ चुका है और लोग बहुत मायूस हो चुके हैं। लेकिन मैं इस मायूसी के दौर में एक सच्चा जीवित परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है, वो भी इसी दुनिया में हमारे साथ, हमारे बीच में है। बस केवल इतना ही जरूरत है कि हम उस परमेश्वर को इस भंवर जाल में समझे, जाने। जैसे कि एक मोती सागर में छुपा हुआ रहता है और जब वो मोती निकल जाता है तो वो बहुत कीमती होता है। उसी प्रकार इतने सारे जो हैं भंवर जाल, उसमें एक सच्चा जीवित परमेश्वर है। बस हमको और आपको ये जरूरत है कि हम उस सच्चे मोती को समझे, जाने। और कृपया आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सिर्फ और सिर्फ सच्चा परमेश्वर को जानने के उद्देश्य से देखें। और जो है आगे के समयों में हम लोग परमेश्वर पर ही एक सीरीज चालू करेंगे जो कि आपके हर सवाल को मैं परमेश्वर की उपस्थिति में और पूरे सच्चाई से बताने का कोशिश करेंगे। आपको बाकायदा यहाँ पर पूरा लिखित में आपको रिटन डॉक्यूमेंट मिलेगा, आप उसको सत्यता को जान सकते हैं।
बस भाई बहनों, मुझे आपसे यही सादर पूर्वक आपसे अनुरोध है, कृपया अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको स्किप ना करें या फिर नज़रअंदाज ना करें। अगर आप आज देख रहे हैं तो आज सच में वो जीवित परमेश्वर का बुलाहट है आपके जीवन में। और हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें करेंगे। कैसे है वो परमेश्वर, हम आपको हर चीज़ हम सब मिल के चर्चा करेंगे। और कृपया आप जो है किसी क्या बोलते हैं, कोई माइंडसेट लेकर के ना रखें कि हम कुछ दूसरा कर रहे हैं। आप समझिए, देखिए हर मनुष्य के पास अपना दिल है, दिमाग है, और परमेश्वर ने उसको एक अपना दिल दिमाग दिया है, दिल दिया है। सोचिए समझिए, सच्चाई सच्चाई होता है, वो किसी का मोहताज नहीं है कि हम उसको सच्चाई नहीं मानेंगे तो वो सच्चाई नहीं होगा। अगर हम सच्चाई को सच्चाई नहीं मानते हैं तो हम अपने जीवन के साथ धोखा करते हैं, और आने वाला समय में हम ही जिम्मेवार होंगे अपने जीवन को कि हमने समय रहते सच्चा परमेश्वर को नहीं जाना। अंतिम बात मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, देखिए ये संसार है, ठीक है, परमेश्वर का उपयोगिता मैं आपको सीधा बताता हूँ। ये सृष्टि को एक जीवित परमेश्वर ने बनाया, ठीक है, और हम सब उसी जीवित परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। अभी हम लोग किसी भी कारण से, किसी भी माइंडसेट से उसको नकारे और कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब ये शरीर छूटेगा तो उसी परमेश्वर के पास जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वही एक परमेश्वर के पास जाएगा। अगर हम उसको मानेंगे, अपने जीवन में उसको ग्रहण किए रहेंगे, तो परमेश्वर हमारा न्याय करके हम अपना आत्मा, अपना जीवन के साथ न्याय करेंगे। और हमारा, क्योंकि देखिए मरने के बाद भी एक जीवन है, इस चीज़ को समझिए। मरने के बाद एक अनंत काल का जीवन रखा है। जो इस धरती पर उस जीवित परमेश्वर को जान करके अपना जीवन जीते हैं, वो अपना जीवन के साथ न्याय करते हैं। और जो उधर में रहते हैं, वो जब ये शरीर छूटेगा तो वो अपना वहाँ पर सिर्फ रोना, दांत पीसना और अपने जीवन के साथ अन्याय करेंगे। बाकी हम लोग आने वाले सीरीज में, परमेश्वर के सीरीज में बात करेंगे। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिस प्रकार ये ज्ञान आपको मिलेगा, उसी तरह आप दूसरों को शेयर करके बताएं कि सच्चा परमेश्वर इस दुनिया में है। बस और बस हमको वो जानने का जरूरत है। वो सच्चा परमेश्वर किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं है। कृपया हम सब इस माइंडसेट से दूर हो और अपने जीवन के साथ न्याय करें, सही को जान करके उसके पीछे चले। और हमारा जीवित परमेश्वर बस एक ही चीज चाहते हैं, हम माता पिता हैं, अपना काम करें बस। वो परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम सच्चाई, शुद्धता के साथ जीवन जिए, न किसी को गाली दे, न किसी से झूठ बोले, न किसी के साथ हम कुछ अन्याय करें, किसी का हक मारे। और बाकी हम लोग और जानेंगे। और एक बात और, अभी हम किसी भाई से बात कर रहे थे, वो बोले कि ये परमेश्वर का एक अलग ही डिपार्टमेंट है, अभी हम इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। देखिए ये गलत है। परमेश्वर पूरी सृष्टि का सृष्टि करता है।
Hello viewers, good morning all of you and welcome to my YouTube channel Bible Gyan for Bible Knowledge for All. जो लोग इस चैनल को देखना शुरू कर चुके हैं उनको उस जीवित परमेश्वर के नाम से प्यार भरा नमस्कार और प्यारा अभिवादन। प्रिय भाई बहनों, हमारे इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम जीवित परमेश्वर के बारे में जानें और जब यह सृष्टि है तो एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर भी है। हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानें। इस चैनल का उद्देश्य है कि आम जनमानस में लोगों के बीच में उस जीवित और सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। ठीक है, ये चैनल किसी भी जाति, धर्म या फिर व्यक्ति विशेष या संप्रदाय विशेष पर बात नहीं करेंगे। हम लोग एक जीवित परमेश्वर जो इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो भी आप लोगों से बात करूं उसका आप लोगों को हम रिटन लिखित फॉर्म में आप लोगों को नीचे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। आप उस लिंक पर जाकर के उस लिखित को पढ़ सके। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सुनिए भाई बहनों, मेरी बातों को आप ध्यान से और पूरे ध्यान पूर्वक सुने और समझे। अभी दिमाग में किसी प्रकार का कुछ को भावना को दूर करें और मेरी बातों को स्पष्टता से और ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, हम जो भी परमेश्वर है, ठीक है, वो परमेश्वर में कुछ गुण होने चाहिए, कुछ खासियत होने चाहिए और वो ऐसा परमेश्वर हो जिसको कि हम जान सके। और देखिए, अब हम लोग परमेश्वर पर आते हैं। जो भी परमेश्वर है वो इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर होना चाहिए, बात एक। दूसरा होना चाहिए कि वो इस सृष्टि से प्रेम करने वाला परमेश्वर होना चाहिए, सारे मानव जाति का परमेश्वर होना चाहिए। वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय ये सब में बंधा हुआ परमेश्वर नहीं होना चाहिए। और ये गलत धारणा है लोगों के बीच में कि परमेश्वर जाति या किसी भी विशेष में बंधा हुआ है। वो परमेश्वर पूरी सृष्टि का परमेश्वर है। हर मानव जाति, चाहे भारत के लोग हो, अफगानिस्तान के लोग हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के लोग हो, या फिर नाइजीरिया के निवासी हो, वो परमेश्वर सृष्टिकर्ता होना चाहिए, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर होना चाहिए, मानव जाति से प्रेम करने वाला परमेश्वर होना चाहिए। और उसके जो भी बेटे बेटियां इस दुनिया में हैं, अगर वो सच्चे दिल से उस परमेश्वर को अपने दिल से पुकारे तो वो परमेश्वर उस बेटा या बेटी के पास जा करके उसको सांत्वना दे और वो उसके समस्या को निराकरण करे। देखिए, परमेश्वर शब्द ना आज के समय में बहुत उलझा हुआ शब्द है। ठीक है, पहले हम लोग समझे परमेश्वर का शाब्दिक अर्थ। परमेश्वर का मतलब है परम ईश्वर, जो ईश्वरों का ईश्वर, जो कि जिसको जीवन मृत्यु पर अधिकार है और जीवन मृत्यु पर अधिकार है, जो कि हर प्राकृतिक घटनाओं पर उसका अधिकार है। जैसे हमारे लिए प्राकृतिक घटनाएं अटल है, लेकिन परमेश्वर जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकृति को बनाया, उन्होंने इस हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी को बनाया
और हवा पानी आकाश पृथ्वी प्रकृति के अंदर आते हैं। जिस गुरु ने, जिस सच्चा परमेश्वर ने इन सब को बनाया, वो ये सब उसी परमेश्वर के अधीन है, ठीक है। और वो जो है सर्वज्ञ होना चाहिए, यानी कि वो परमेश्वर एक कुल या भाषा में या जो इस दुनिया का है उसमें ने ये पूरे सृष्टि का परमेश्वर होना चाहिए। हर एक बेटा बेटी मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है वो परमेश्वर का बेटा या बेटी है। हमको ये बात समझना चाहिए कि वो परमेश्वर, अगर कोई भी बेटा बेटी सच्चे दिल से उस परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो परमेश्वर बिना किसी जाति धर्म का भेद किए हुए, बिना किसी पक्षपात किए हुए उस व्यक्ति पर आएंगे। देखिए, परमेश्वर में सबसे बड़ा बात है कि वो पवित्र परमेश्वर होना चाहिए। वो ऐसा परमेश्वर होना चाहिए जो कि हमको, वो स्वयं पवित्रता का मानक हो और वो हमको एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए प्रेरित करे, वो हमसे प्रेम करे। वो परमेश्वर हमारे जो पाप हमने किए हैं जाने अनजाने में, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पाप कौन क्षमा करेगा? पाप क्षमा करने का अधिकार उसी को है। देखिए, एक उदाहरण हम देंगे। जैसे मैं, हमारा बेटा या बेटी है, ठीक है, बेटा बेटी कुछ गलती करता है तो वो मेरे सामने गलती किया तो हम उस गलती को सुधार करके अपना बेटा बेटी को माफ कर सकते। ये हुआ एक क्षमा। लेकिन वो तो मेरा एक बेटा या बेटी है, लेकिन ये सृष्टि पूरा मानव जाति जो पाप कर रहे हैं और जो पाप में गिरे हुए हैं, अगर वे पाप करते हैं, वो तो सब कोई करते हैं, हम भी हैं, हम भी अछूते नहीं हैं। और लेकिन अगर हम सच्चे दिल से उस पाप का पश्चाताप करें तो वो परमेश्वर पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर होना चाहिए। यहाँ पर बात आती है कि वो पाप को कैसे क्षमा कर सकते हैं। ये बात बहुत गौर करने वाली बात है कि पाप को क्षमा वही करेंगे जो कि पाप को क्षमा करने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। जैसे ये पूरे मानव जाति पाप करने थे, पाप का था न मृत्यु, न इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा वो जीवित परमेश्वर जब ये सृष्टि, जब हम पाप में मर चुके थे और नरक की ओर, मृत्यु की ओर जा रहे थे, मृत्यु का मतलब है कि अनंत काल का आग, नरक, तो वो परमेश्वर हमारे लिए, हमारे पाप के लिए बलिदान हुए, ठीक है। और वो परमेश्वर हमारे पाप के लिए बलिदान हुए और तीसरे दिन जी उठे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको, कुछ लोगों को अटपटा लगता होगा कि ये बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि ये, लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सच्चा परमेश्वर किसी जाति धर्म या किसी संप्रदाय में उलझा हुआ नहीं है। ये एक गलत नैरेटिव है या फिर एक गलत दुनिया में कथन है जो कि पूरी मानव जाति इसमें भरमाई हुई है। मैं आपको सब कुछ लिखित में, और आप इस पर गहराई से मनन करें। अगर आज आप ये YouTube चैनल देख रहे हैं तो परमेश्वर का आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बुलाहटा है कि आप उस सच्चे परमेश्वर को जानें। इस YouTube के दौर में बहुत सारे चैनल्स जो होड़ लगी है YouTube चैनल्स की, लेकिन
हमारा ये YouTube चैनल एकमात्र सिर्फ और सिर्फ ऐसा चैनल होगा जो कि उस सच्चे जीवित परमेश्वर के बारे में हम लोग मनन करेंगे और हम लोग उस पर गहराई से चर्चा करेंगे। अगर आपको या किसी को भी कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। कोशिश हो कि आप अपना जीमेल आईडी दें, मैं आपके जीमेल आईडी पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। क्योंकि आज के समय में एक जीवित परमेश्वर के नाम से मैं देखता हूं कि एक बहुत बड़ा बैंकरप्सी यानी कि क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत बड़ा खालीपन आ चुका है और लोग बहुत मायूस हो चुके हैं। लेकिन मैं इस मायूसी के दौर में एक सच्चा जीवित परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है वो भी इसी दुनिया में हमारे साथ हमारे बीच में है। बस केवल इतना ही जरूरत है कि हम उस परमेश्वर को इस भंवर जाल में समझे जाने। जैसे कि एक मोती सागर में छुपा हुआ रहता है और जब वो मोती निकल जाता है तो वो बहुत कीमती होता है। उसी प्रकार इतने सारे जो हैं भंवर जाल, उसमें एक सच्चा जीवित परमेश्वर है। बस हमको और आपको ये जरूरत है कि हम उस सच्चे मोती को समझे जाने। और कृपया आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमारे इस चैनल को सिर्फ और सिर्फ सच्चा परमेश्वर को जानने के उद्देश्य से देखें। और जो है आगे के समयों में हम लोग परमेश्वर पर ही एक सीरीज चालू करेंगे जो कि आपके हर सवाल को मैं परमेश्वर की उपस्थिति में और पूरे सच्चाई से बताने की कोशिश करेंगे। आपको बाकायदा यहाँ पर पूरा लिखित में आपको रिटन डॉक्यूमेंट मिलेगा, आप उसको सत्यता को जान सकते हैं। बस भाई बहनों, मुझे आपसे यही सादर पूर्वक आपसे अनुरोध है, कृपया अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको स्किप ना करें या फिर नज़रअंदाज ना करें। अगर आप आज देख रहे हैं तो आज सच में वो जीवित परमेश्वर का बुलाहट है आपके जीवन में। और हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें करेंगे। कैसे है वो परमेश्वर, हम आपको हर चीज हम सब मिल के चर्चा करेंगे। और कृपया आप जो है किसी क्या बोलते हैं, कोई माइंडसेट लेकर के ना रखे कि हम कुछ दूसरा कर रहे हैं। आप समझिए, देखिए हर मनुष्य के पास अपना दिल है, दिमाग है और परमेश्वर ने उसको एक अपना दिमाग दिया है, दिल दिया है। सोचिए समझिए, सच्चाई होता है, वो किसी का मोहताज नहीं है कि हम उसको सच्चाई नहीं मानेंगे तो वो सच्चाई नहीं होगा। अगर हम सच्चाई को सच्चाई नहीं मानते हैं तो हम अपने जीवन के साथ धोखा करते हैं और आने वाला समय में हम ही जिम्मेवार होंगे अपने जीवन को कि हमने समय रहते सच्चा परमेश्वर को नहीं जाना। अंतिम बात मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, देखिए ये संसार है, ठीक है। परमेश्वर का उपयोगिता मैं आपको सीधा बताता हूँ, ये सृष्टि को एक जीवित परमेश्वर ने बनाया, ठीक है। और हम सब उसी जीवित परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। अभी हम लोग किसी भी कारण से किसी भी
माइंडसेट से उसको नकारे और कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब ये शरीर छूटेगा तो उसी परमेश्वर के पास जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वही एक परमेश्वर के पास जाएगा। अगर हम उसको मानेंगे, अपने जीवन में उसको ग्रहण किए रहेंगे, तो परमेश्वर हमारा न्याय करके हम अपना जीवन के साथ न्याय करेंगे। और हमारा, क्योंकि देखिए मरने के बाद भी एक जीवन है, इस चीज को समझिए। मरने के बाद एक अनंत काल का जीवन रखा है। जो इस धरती पर उस जीवित परमेश्वर को जान करके अपना जीवन जीते हैं, वो अपना जीवन के साथ न्याय करते हैं। और जो उधर वन में रहते हैं, वो जब ये शरीर छूटेगा तो वो अपना वहाँ पर सिर्फ रोना, दांत पीसना और अपने जीवन के साथ अन्याय करेंगे। बाकी हम लोग आने वाले सीरीज में, परमेश्वर के सीरीज में बात करेंगे। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जिस प्रकार ये ज्ञान आपको मिलेगा, उसी तरह आप दूसरों को शेयर करके बताएं कि सच्चा परमेश्वर इस दुनिया में है। बस और बस हमको वो जानने का जरूरत है। वो सच्चा परमेश्वर किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं है। कृपया हम सब इस माइंड सेट से दूर हो और अपने जीवन के साथ न्याय करें, सही को जान करके उसके पीछे चले। और हमारा जीवित परमेश्वर बस एक ही चीज चाहते हैं, हम माता पिता हैं, अपना काम करे बस। वो परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम सच्चाई, शुद्धता के साथ जीवन जिए, न किसी को गाली दे, न किसी से झूठ बोले, न किसी के साथ हम कुछ अन्याय करें, किसी का हक मारे। और बाकी हम लोग और जानेंगे। और एक बात और, अभी हम किसी भाई से बात कर रहे थे, वो बोले कि ये परमेश्वर का एक अलग ही डिपार्टमेंट है, अभी हम इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। देखिए ये गलत है। परमेश्वर पूरी सृष्टि करता है।